Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 7 Civics chapter 3 How the state government works. राज्य शासन कैसे काम करता है पार्ट 3. In today's lecture video we will discuss about working of the government. आज के इस लेक्चर वीडियो में हम शासन की कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे. So let's start. The Legislative Assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. केवल विधानसभा में ही सरकार के कामकाज के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग ही नहीं की जाती. You will find newspapers, TV channels and other organizations regularly talking about the government. आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते देखते हैं. In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take action. लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं. Let's look at some such way. यहाँ हम इसी तरह का एक तरीका देखेंगे. Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister. विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई. Large numbers of people from different newspapers were present. जहां पर विभिन्न न्यूज़पेपर्स यानी अखबारों एवं टीवी चैनलों के संवाददाता मौजूद थे. The minister and some government officials were also present. इनके अलावा सरकार के कुछ मंत्री और अधिकारी भी वहां उपस्थित थे. The minister explained the step of government had taken. स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया. Reporters asked many questions at this meeting. रिपोर्टर्स ने संवाददाताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्री से अनेक प्रश्न पूछे. The discussion were then reported in different newspapers. और अगले ही दिन इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी. The following page has one such report. अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है. During the next week, अगले सप्ताह, the chief minister and the minister of health, during the next week, the chief minister and the minister for health visited पातालपुरम district. अगले ही सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए. They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospitals. उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी. The government announced a compensation for these family. सरकार ने उन परिवारों के लिए जिनके रिलेटिव्स की बीमारी में डेथ हो गई थी उनके लिए मुआवजा राशि की घोषणा की. The chief minister also said that he thought the problem was not only one of sanitation but also of a lack of clean drinking water. मुख्यमंत्री ने कहा
उनके विचार से समस्या केवल सफाई की ही नहीं है, बल्कि पीने के साफ पानी की भी है। He said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities and would request to Minister for Public Works to take care of the needs of proper water supply in the region. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो कि साफ सफाई की सुविधाओं को लेकर जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार विमर्श करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी कि सफाई को लेकर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको सुधारा जा सकता है। और उन्होंने लोक निर्माण मंत्री को यह दिशा निर्देश जारी किया कि वे अपने क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर, पानी की साफ सफाई पर ध्यान दें। As you saw above, जैसा कि आपने ऊपर देखा, the people in power, like the chief minister and the minister, have to take action. जो लोग सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। They do so through various departments like the Public Works Department, the Agriculture Department, the Health Department, the Education Department and so on. वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। They also have to answer questions that are asked in legislative assembly and convince people asking the questions that proper steps are being taken. क्योंकि उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उनके द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं। At the same time, newspapers and the media widely discuss the issue and the government has to respond. For example, by holding the press conference. और इसके साथ साथ समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसा कि प्रेस वार्ता आयोजित करना। इसके अलावा जहाँ ऊपर बॉक्स में गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज, सरकार ने कचरे की सुधली, इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। During the last few weeks, there have been many deaths in some districts of our states. ये पातालपुरम में रवि आहूजा, ये न्यूज़पेपर के राइटर हैं, उनका जो आर्टिकल है उन्होंने लिखा है कि पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। There has been a strong reaction that the government has not taken this seriously. इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। The health minister explained today at a press conference that his government has asked all the collectors and the chief medical officers to take urgent measures. आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। The most important problem is that of drinking water. सबसे महत्वपूर्ण समस्या जिले में पीने के पानी की है। The minister said that they intend to supply drinking water to every village through tanker trunks. The chief minister has promised funds for this work. मंत्री महोदय ने कहा है कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है।
मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन भी दिया है। They also plan to start a campaign to inform people about the steps that can be taken to prevent diarrhea. इसके अलावा उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा सकता है, किन उपायों द्वारा डायरिया से रक्षा हो सकती है। When a reporter asked him as to what steps are being taken to see that garbage that has been lying around for months is quickly collected, the chief minister said that he would look into this. जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। ठीक है, आपने ऊपर जिस प्रेस वार्ता के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसी की एक रिपोर्ट रवि आहूजा नाम के राइटर ने अपने न्यूज़पेपर में छापी है। नाउ the government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities. सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय भी ले सकती है। एग्जाम्पल के लिए it may make it compulsory for municipal corporation to ensure that there are adequate toilets in every urban areas. जैसे कि वह कानून बनाकर हर नगर निगम को अनिवार्य कर सकती है कि वह शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था करे। It may also ensure that a health worker is appointed in every village. वह यह भी अनिवार्य कर सकता है, यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि हर गांव में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। This act of making law on certain issues is done in the legislative assembly of each state. किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। The various government departments then implement these laws. Laws for the entire country was made in parliament. इसके पश्चात राज्य विधानसभा द्वारा कानून बनाने के बाद विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं, राज्य के विभिन्न भागों में इस कानून को लागू करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में यानी पार्लियामेंट में बनाया जाता है। You will read more about the parliament next year. आप संसद के बारे में अगले वर्ष पढ़ेंगे। मैंने अपने बच्चों को लास्ट ईयर क्लास 6 में बताया था कि जो पार्लियामेंट होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। ठीक है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है। और इसमें जो है लोकसभा राज्यसभा में जो हाईएस्ट सीनेट होता है वो राज्यसभा होता है, राज्यसभा हायर सीनेट होता है। ठीक है, लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो जनता द्वारा डायरेक्टली चुने आते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट ईयर इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ हम कंटिन्यू करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी it is the people who elect their representative as members of the legislative assembly, and thus it is the people who have the main authority. लोकतंत्र में विधायकों एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। The ruling party members then form the government and some members are appointed ministers. फिर सत्ता पक्ष के सदस्य
सरकार बनाते हैं और उनमें से कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। These ministers are in charge of various departments of the government such as health in the above examples. ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग। Whatever work is done by these departments has to be approved by the members of the legislative assembly. इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। A wallpaper project, वॉलपेपर की परियोजना। A wallpaper is an interesting activity through which research can be done on particular topics of interest. The following photographs explain the different aspects involved in creating a wallpaper in a classroom. वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जाता है। यहाँ जो तस्वीरें प्रस्तुत की गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं की हैं। After introducing the topic and having a brief discussion with the whole class, the teacher divides the class into groups. The group discusses the issues and decides what it would like to include in the wallpaper. क्लास टीचर, कक्षाध्यापिका या शिक्षिका चुने गए किसी एक विषय को सब्जेक्ट को चूज करती है, फिर उस सब्जेक्ट से सबको पूरी क्लास को इंट्रोड्यूस करवाती है, परिचित करवाती है कि ये सब्जेक्ट है, इसमें ये चीज़ें हैं। देन उस पर शॉर्ट में डिस्कशन होता है, फिर वो क्लास के सभी बच्चों को कुछ ग्रुप्स में बांट के उस टॉपिक को डिवाइड कर देती है। Children then work individually or in pairs to read the collect material and write their observations or experiences. They can do this through creating stories, poems, case studies, interview, etc. इसके बाद बच्चे अपने आप या दो की जोड़ी में इकट्ठा की गई सामग्री को पढ़ते हैं, अपने अनुभव और विचारों को लिखते हैं। वे इस विषय के संदर्भ में कविता भी लिख सकते हैं, कहानी भी लिख सकते हैं, किसी का इंटरव्यू एंड साक्षात्कार लिख सकते हैं और अदर विवरण लिख सकते हैं। द ग्रुप लुक्स एट द मटेरियल दैट दे हैव सेलेक्टेड, drawn or written. They read each other's writing and provide feedback to each other. They make decisions on what should be included and finalize the layout for the wallpaper. जो भी मटेरियल उस सब्जेक्ट पर कलेक्ट किया गया, बनाया गया या लिखा गया, उसे उस ग्रुप के सभी लोग मिलकर देखते हैं। वे एक दूसरे के लिखे हुए लेखों को पढ़ते हैं और उस पर अपने सुझाव देते हैं। फिर मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या चीज़ें ऐड की जाएंगी और उसका लेआउट बनाते हैं। Each group then presents the wallpaper to the entire class. It is important that more than one member of the group is asked to present and that each group is allotted the same amount of time to discuss their work. इसके बाद प्रत्येक समूह अपना अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने, क्लास के सामने प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए बराबर समय मिले। After each group was present, it would be a good idea to bear a feedback session on the following. What more could try do on their own? How could their work be organized better? How could writing and presentation
be improved upon. इसके बाद सभी समूह अपना अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रस्तुतिकरण देते हैं। तो समीक्षा के लिए, उसको ऑब्जर्वेशन के लिए उस पर और फीडबैक के लिए यह ज़रूरी होता है, फीडबैक के लिए ज़रूरी होता है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएं कि आप क्या कर सकते थे, आपने क्या किया है और आप क्या कर सकते थे, क्या करने से उनका काम और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लिखने और प्रस्तुत करने में और भी लिखने और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए और क्या क्या किया सकता है, सभी अपना अपना फीडबैक उस वॉलपेपर पे देते हैं। This wallpaper about the 2006 dengue epidemic was prepared by children of class 6B of केंद्रीय विद्यालय सेकेंड हिंडन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में यह वॉलपेपर क्लास 6B केंद्रीय विद्यालय के बच्चों द्वारा बनाया गया था। क्लास 6B केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन, गाजियाबाद, यहाँ के विद्यार्थियों ने इस वॉलपेपर को तैयार किया था। ठीक है, तो इस तरह से वॉलपेपर तैयार किया जाता है। सबसे पहले एक सब्जेक्ट को डिसाइड कर लिया जाता है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट की मैटर क्या है एक्चुअल में, फिर जो टीचर होता है सबको सारे स्टूडेंट को डिस्क्राइब करता है, फिर वो पूरी क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करता है। सभी ग्रुप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अपने अपने व्यूज़ देता है। अब वो पोएम के रूप में हो सकता है, वो नाटक के रूप में हो सकता है, या फिर जो है वो एक निबंध के रूप में हो सकता है। किसी भी तरह का वो मैटर या वॉलपेपर हो सकता है। उसके बाद सभी ग्रुप अपने अपने वॉलपेपर को सबके सामने प्रेजेंट करते हैं और तब तक अदर जो ग्रुप्स होते हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वॉलपेपर में ये है तो और क्या हो सकता था कि और अच्छा हो जाता। ठीक है, ये चीज़ें सही नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद सभी जो है अपने अपने वॉलपेपर्स जो है वो कलेक्टिवली बनाते हैं, तो देन जो है एक फाइनलाइज वॉलपेपर तैयार होता है। तो ये था आज का लेक्चर वीडियो। आज का लेक्चर वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, साथ ही आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। आज के वीडियो रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।